The former TTADC advisor Captain G.S. Rathe has decided to work through TRPC for the welfare of Tiprasa people. As such, Captain G.S. Rathe sat on a meeting with TRPC Chairman Patal Kanya Jamatia on Monday. The advisor of TTADC Captain G.S. Rathe had dreamed to serve for the welfare of Tiprasa people. However, he had to resign his post because of ADC budget manipulation and interference from few officials of ADC. However, Captain G.S. Rathe has promised to work for the welfare of Tiprasa people even though he had resigned from his recent post. As such, with the request of TRPC Chairman Patal Kanya Jamatia, Captain G.S. Rathe has decided to work through TRPC to serve for the welfare of Tiprasa people. According to the news, Captain G.S. Rathe sat on a meeting with TRPC Chairman Patal Kanya Jamatia on Monday to discuss for his coming works and department. TRPC Chairman Patal Kanya Jamatia clearly said that through a press conference to the reporters. Zoto hasti ni lukurong ithanigo kaisa khaksang ma koktun te hamari ni koktun no zoto sini media ni bisinte zoto baisang connectivity klayan thangtongo obong kyaboti hai nirok sali satamni sakang nukhna ani kaisa Facebook page so te obo nirok nukhna news media ro kasai femani jesang thangnai shalo ADC ni advisor Captain G.S. Rathe ADC resignation romani boni ulo sang pulo tawra program mo malaika malai pro boy kabang ma kok salaika boni kabang ma development samung tangan ro boni je interested tongmani boni je capacity tongmani boni je vision te mission tongmani abrong no boi belai khena angbono khafurkha samung ni bage angka abrong no tei bakaisa ni Facebook page ang sikha je Triprahani development borokni development hani hamari ni samung khainani ni khaw tong khangke TRPC ni bisinti ko ma samung tongo orobo sang khaiman abani reply bandirong nukna joto no video viral bor horpika joto no sungno khanor ni media ni bisinti be sungno kha je samung Triprahani bagai lukurong ni bagai hani bagai samung khainani bagai belai khebani khagana je sang samung romani na botlang mani bagai Triprahano hamari khainani bagai boni bakhawre dito abni bagai ne bo tini malagi kok salainai te bahai samung tangai sing beskangni hat itu fani hamari ko talang lai manai abono salagi sin beskangni samung abrono tin tinor rinjaka ingkang pilane sini murogranai sengoro joto no sini laine tini se sengoro nyo tongsonai jeto mo TRPC ni samung ni related kesi samung ororing lai mani ba pilane ani sakbai thangmiro joto sigu se TRPC ni chairman hisabe gai ang patal konna jomatia yang tunggu sini Rupji Das ini ex principal Navodoi ni intellectual person yang sai pene sini deputy manager sini headquarter ni Santosh Deporma te sini social worker sini Baiko Bita Jomatia te yang di sengjoton sai mana tini ni nograi joton sini all subject ni nograi sini Captain G.S. Rathe ji te sini tunggoro ni go obisitrai sini TRPC ni deputy manager West ni te sini tunggoro ni go sini social worker social activist sini Baisimadi obhai klage seng tini oro ni go asuk to mani jora ega tabo nirona sana ni musuk mani kamate hai Tripraha development khainani je borok musuk nai Tripraha ni hamari to banani je borok musuk nai borok joto bani yak baksa ke seng unitedly samung khainani bagai ang nije personally belaiken interested te o samuno khai family loi te khai thangkenai abani bagine seng G.S. Rathe jine seng tini boni o khainani musuk mani Tripraha do fani bagai bo samung khainani musuk mani te boje khainani imang tongano khaimai akhlagi bo yakagi ba thangani naimani abono seng tewaisa continue odo fani bagai samung khairan bagai ne bono ringjaka te seng saimana o Tripraha o kabang masini samung hamari seng tabo lama o seng nugu je mudini na harmong bai Triprano development khainani mudini hamari bai seng Triprano super state khainani bagai mudini vision and mission kaisana Tripura super state inten Tripura joto bai baksa basai mathu aja ko seng joto no sakha laigene tabo seng TRPC ni bisinti bahake ni sini socio economics na tei growth khaima sini interior area go bises klage sini zonjati people area go deprived borok rokno bahake development khaima na abna tei sakha laigi seng paile yang tu tei TRPC ni gai seng ora ko bulai sana ni klaiga asa ke TRPC ni bisinti seng samung kabang tangai mana jeta seng tangai mama no seng tangai manya ko abni bagane seng tei borok kabang nangge kereng nangge sakhanai borok nangge kha kaham nangge nuhor mari genang borok nangge tei khai mana chuk nai borok nangge aro ni bisingo Captain Rathe no corruption no kha bo khai mana kha ba genang subu abni bagane o samungo seng kerengai samung tangnani bagai bono ringjaka abni bagai tini o Tripraha tini bagai belai khena kepal kaham seng hoi mana
sini o hawa tonggui seng tanggui tangbaya tanggui sarolai mi yang tongma jaga o phatar haste ni phagi sini bagi samung tangnai kha kotor kwar bai phainai ro seng no hamjagai khari oi phainai ro no seng platform rogui baya abo hai seng platform rogui boroni bisinti phamnanani boron bisinti te bisini samno sarai tisanani abo sini daitto klai abni bagine ang corruption development na hamjanai muri corruption development tiprani imang hamjanai rakhaji boni naharmung tiprani oroni borok socio economics te development nungtung abno bo nahari samkhai pia boni samung arni go bo khaisuk bale liya kene boroni tam ngai kabana sanan thangya abo borong saimanai pia bo hai samung khainai fatani phaigai particular indigenous people ni bagai samung khainai hni phainai jeng belaina man thogya togo pia bo hai borok sukjak borok no jeng tangai yakai honai abni bagai TRPC ni bisingti kabang samung tangai mane o TRPC ni bisingti nok nukungbai joto jonjati area ni nukungbai ne jeng kerengai mane te hamari betabo jeng tanglai tongo tangbai maya paile yanglai tongo abni bagai jeng khnaka rubber kai tongoni bisingo tabo jeng agor betakle 80,000 agor kai ne sini forest department sini chief minister subamani bai free of cost takle biseng kai finai agor boni pore jeng wa 200 family wa bakai re already sin nabard bai kok sarai pikha tei bes kanggo sondon kai nei sondoni bangi team phai tongo tissue culture tak biotechnology bai tabo industry tam honai tabo ni jokungkha technology ni ju industrial life o jagawa sini o tripura ho basang sini sara bharatbor bai baksa samai phanu jesak bansak seng borai baksa re thangai mano abo hai seng tabo sakthalai tongma jaga kereng nang khagrang borok nang sengno lama phuruk banai borok nang omate hai borok kabang seng nang kisaya a jaga wono rathiji corruption nang kok bani borok nei bono seng ringai tini mato hambai te yang kha khaige haste ni nukurok je hamari nai nei tripura ni bagai unnoti nai nei tripura ni bagai tongkasang nai nei bikha mukti tripura nai nei tripura sarok ni nok nogo rang bial tang thung nai nei aborok joto no khatung khajaka seng development ni imango chelai tongmani yaprigo joto no baksa khlaigai kharogoi samung tanglai ni ang khasong. Former advisor of TTADC Captain J.S. Rathe clearly said on what reason he had resigned from his post by making several allegations. जो आपका जो रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन में बहुत चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ पे एक जो विज़न है जिसके लिए जनता ने एक जो पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं उनको चुन के भेजा हुआ होता है, वो लोग जनता के फेवर में काम नहीं करना चाहते, बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा 1 साल और 2 महीने का जो टेन्योर था TTADC में, मैंने अपना बेस्ट दिया वहाँ पे, और शायद इतना मैंने बेस्ट दिया कि जो वहाँ की जो सरकार है वो 10 साल में भी उतने लोगों को नहीं दे सकती जो मैंने 1 साल और 2 महीने में दिया। मैं सिंगल हैंडेडली 1100 करोड़ रुपए का अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर इन्वेस्टर्स को लेके आया मैं वहाँ पे। लेकिन जब वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जब वो इन्वेस्टर के अलावा भारत सरकार NSDC जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर जो काम करता है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे आ रही हैं, वो तिपरासा के लिए जो हमारे जनजाति है उनके लिए, उनके कल्याण के लिए अगर कोई काम करना चाहती हैं, तो उन फाइलों के ऊपर अगर उन फाइलों को दबा के अगर आप बैठेंगे, अगर उनका काम नहीं हो पाएगा, अगर उनको हम सामाजिक और आर्थिक उत्थान नहीं दे पाएंगे, तो फिर मेरा कोई रोल नहीं है वहाँ पे। मैं काम करने आया हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं लेता। TTADC से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन देखिए, एक कहावत होती है, आइदर यू परफॉर्म और पेरिश, या तो आप काम करिए या छोड़ दीजिए। वो 2 लोगों के लिए होता है, या तो जो नकारा आदमी होते हैं, जो कुछ नहीं करते सिस्टम के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, उनको छोड़ देना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनकी मंशा काम करने की नहीं है, उनको डिपार्टमेंट से खुद ही इस्तीफा देके निकल जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है कि आप वहाँ पे अपना पूरा मन लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो सरकारी जो तंत्र है, जो वहाँ जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो दूसरी स्थिति आती है। तो मैं उस दूसरी स्थिति के अंदर फिट होता हूँ कि मैं वहाँ पे काम करने के लिए गया, और वहाँ पे मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत चीज़ें किया, और जहाँ पे जो चीज़ें हैं जो ADC खुद नहीं कर पाता था, वो मैं पर्सनल कैपेसिटी में करता था। चाहे लोगों को व्हीलचेयर बांटना हो, चाहे उनको अगर कोई बच्चे का एजुकेशन है उनको स्कूल में एडमिट करवाना हो, मैं अपनी जेब से मैंने लोगों का फीस भरा है वहाँ पे। जो ड्रग एडिक्शन के लिए मैंने ही, आई वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस वहाँ पे जो आपका ड्रग
आपका अवेयरनेस एंड रिहैबिलिटेशन जो वहाँ का जो फोरम था, जो कमेटी था, वो मैंने गठन किया, हमारे जो सीओ साहब जो सीके जमातिया जी थे उनके साथ मिलकर। लेकिन क्या हुआ उसके अंदर, मैं आपको छोटा सा एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि जो हमारा त्रिपुरा है, आज जो हमारा त्रिपुरा का यूथ है वो ड्रग्स से जूझ रहा है, सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं सीओ साहब और एक जो अभी एमएलए बने हैं, जो पहले एक ऑनरेबल ईएम थे, वहाँ पे हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ हंड्रेड्स की संख्या में, 100 की संख्या में वहाँ पे महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, हमारे युवा साथी थे। वहाँ पे हमने उनको एड्रेस किया। अगले दिन हमारे पास फ़ोन आता है, हमारे सीओ साहब के पास फ़ोन आता है, वहाँ के जो एमडीसी थे उनका, वो जो वहाँ के जो एमएलए थे उनका, कि हमारी बगैर परमिशन के आपने ये प्रोग्राम क्यों किया वहाँ पे। इट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल प्रोग्राम। अगर वहाँ पे जो युवा हमारा है, अगर हम उनको सशक्त करने की बात करते हैं, अगर हम उनको एक कन्विंस कर रहे हैं कि आप जो ड्रग्स का रास्ता छोड़िए, उसमें क्या गलत बात है? किसका परमिशन चाहिए? अच्छा काम करने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया, पॉलिटिक्स मैंने बहुत देखा, मैंने बचपन से पॉलिटिक्स देखा है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया यहाँ पे, मैं जनता को कुछ देने आया हूँ यहाँ पे। लोग अभी मैं कुछ इंटरव्यू मैंने दिया तो मैं यूट्यूब वगैरह पे कुछ कमेंट पढ़ रहा था, अरे ये कैप्टन हरियाणा का है, कैप्टन दिल्ली का है, ये यहाँ क्या करने आया है? अरे मैं हरियाणा दिल्ली का हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। सबसे पहले मैं इस देश का अभिन्न अंग हूँ। मैं जितना हक आप लोगों को त्रिपुरा में है, उतना ही हक मुझे भी त्रिपुरा में है। आज हमारे आदरणीय जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब है बिप्लब देव जी, वो हरियाणा के प्रभारी बने हुए हैं। हरियाणा वाला तो कभी उनको नहीं पूछता कि भाई तुम तो त्रिपुरा के हो, आप यहाँ क्या करने आए हुए हो। जितना हमारा फौजी भाई बहन है वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, कोई चाइनीज बॉर्डर के ऊपर है, कोई नेपाली बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई बांग्लादेश बॉर्डर पे बैठा है, क्या उनसे कोई सवाल जवाब करता है कि भाई तुम तो बिहार के हो, तुम यहाँ क्या करने आ गए? तुम तो पंजाब के, तुम यहाँ क्या करने आ गए? तुम राजस्थान के, तुम यहाँ क्या करने आ गए? ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, और हमारी आइडेंटिटी भारत से, हिंदुस्तान से हमारी आइडेंटिटी। और जो हमारा जो जनजाति है, जनजाति जो है इंडिजिनियस पीपल, ये हमारे भारत के मूल निवासी हैं। इनको बचाने का, इनके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने का हर एक इंसान का दायित्व है। इसलिए उस दायित्व को निभाने के लिए मैं त्रिपुरा में आया हुआ हूं। और ऐसा नहीं है कि अब बहुत से लोग कहेंगे त्रिपुरा ही क्यों चुना, दूसरा भी चुन लेते, मेरी मर्जी। मैं त्रिपुरा से स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज को। सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हर एक आदमी का सपना होता है रोटी कपड़ा और मकान, सबसे जरूरत होता है। लास्ट ईयर का मैं एक वाक्य मैं बताना नहीं चाहता था आपको। मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया जिसके अंदर मैंने जो स्किल सेक्टर काउंसिल है, जो इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी सारा, और एनएसडीसी के माध्यम से मैं यहाँ पे तिपरासा को, एलोन सिर्फ तिपरासा को 23,000 हर साल का एम्प्लॉयमेंट देने का मैंने वायदा किया था। यहाँ पे 23,000 एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से 8,000 एलोन एनएसडीसी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो उसमें दे रहा था। और जो 8,000 जो बच्चा जो हमारा तिपरासा का है, उनको फॉरेन में जॉब विद मिनिमम सैलरी ऑफ 1.5 लाख। क्यों उस फाइल के ऊपर बैठे? Why the system is sitting on that file from the last 4 months? तर्क आ रहे हैं कि उनका ये। फिर एक हमने मीटिंग किया, जो स्किल सेक्टर काउंसिल, टेलीकॉम स्किल सेक्टर काउंसिल, ऑटोमोबाइल स्किल सेक्टर काउंसिल और काउंसिल के लोग आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग हुआ। उन्होंने बोला हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, हम आपके बच्चों का यहाँ पे 15,000 बच्चों का मिनिमम हम यहाँ से हर साल का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। उस फाइल के ऊपर बैठ के, अरे जिस गरीब के घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता, वो जो ड्रग्स के अंदर जो युवा चला गया, क्या आप उसकी सुध लेते हो? अगर कोई आपको, आपके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्या बुराई है उस चीज में? आपको फाइल पे नहीं बैठना चाहिए, आपको उस चीज के अंदर प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉडन होनी चाहिए। नैरो माइंडेड से काम नहीं चलेगा, आपको आउट ऑफ बॉक्स निकलना पड़ेगा। आप यहां बैठ के सोचते हैं मैं, हमारे स्टेट में दिल्ली जैसा डेवलपमेंट हो, फिर उसके बाद किसी ने एक मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ, अरे बाहर का कंपनी लेके आ रहा है कैप्टन, बाहर का कंपनी आएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। किसने बोल दिया भाई ऐसी बातें? दिल्ली में जाइए, G20 समिट होने वाला है, दिल्ली को मोदी जी ने चमका रखा है एक विश्व पटल के ऊपर। मोदी जी एक वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा कुनबा है, और वो इन्वाइट करते हैं।
क्यों वहां पे G20 समिट के अंदर पूरे विश्व के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो क्यों आ रहे हैं वहां पे? किस लिए आ रहे हैं वो? कि हमारा जो एक इंटरनेशनल कॉपरेशन है, चाहे वो कल्चर के अंदर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे बिजनेस में है, चाहे जीडीपी ग्रोथ में है, चाहे HDI ग्रोथ में है, वो चीज बढ़े और हम आपस में सहयोग करके एक जो कुनबा है, जो विश्व का पूरा कुनबा है, उसको हमें एक साथ लेकर डेवलपमेंट की बात करें। अदरवाइज मोदी जी को क्या पड़ा है? पहले भी प्रधानमंत्री आए जो मौन रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, उन्होंने कौन सा डेवलपमेंट कर दिया देश का? लेकिन एक प्रधानमंत्री आया जो वाइब्रेंसी की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है, सबके विकास की बात करता है, तो उससे सीखिए कुछ। तो अगर जब तक आप देखिए त्रिपुरा में कौन सा इंडस्ट्री आ गया, यहां पे बंगाल में टाटा गया था एक बार, टाटा को ममता जी ने मना कर दिया कि आप चले जाओ, सिंगूर वाला जो कांड जो हुआ था। आज तक वेस्ट बंगाल में कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं आया। उसका नुकसान किसको हुआ? एक आम आदमी को। वहां पे जिसके बच्चे ने इंजीनियरिंग किया था, वो सोच रहा था टाटा का प्लांट आएगा, मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। कोई दूसरा दुकान वाला था, वो सोचा मेरी दुकान यहां पे खोलूंगा मैं, यहां पे इतना एम्प्लॉय काम करेगा, मेरे को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। और वहां पे इतने लोग थे, सोचे डेवलपमेंट होगा, हमें यहां पे ये मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं मिला। नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का नुकसान हुआ। कि किसकी आड़ में हुआ? पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ाओ, गंदी डर्टी पॉलिटिक्स। आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स ओवर हियर। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी जो आदरणीय जो चेयरपर्सन है TRPCL की मैडम पातल कन्या जमातिया जी, कि इन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, मुझे यहाँ पे बुलाया कि भाई आप आइए, आप हमारा TRPCL के लिए हमारे लिए कुछ कीजिए आप। तो मैं हाथ जोड़कर आज उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में जाना, मेरे से बात हुआ। उनका ये जो मैडम बता रही थी पोलो टावर के अंदर हमारा इवेंट था, वो इवेंट मैंने कराया। आज तक पूरे त्रिपुरा में किसने टीचर्स के बारे में सोचा है? कल हमारा शिक्षक दिवस है, टीचर्स के बारे में कौन सोचता है? लेकिन फिर भी मैं वहाँ हरियाणा से बात करके OP जिंदल यूनिवर्सिटी को पूरा जितना हमारा अगरतला का सरकारी चाहे गैर सरकारी जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल, उनको बुलाया। उनको ADC से हमने बुलाया, जो हमारे जो ट्राइबल स्कूल्स के जो टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन लोगों को, कि उनको साइकोलॉजी, बिहेवियर के ऊपर हमने उनको ट्रेन किया। किस लिए? कि वो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारा एसेट है, हमारा जो त्रिपुरा का और हमारे त्रिपुरासा को, वो एक सही उनको डायरेक्शन दे सकें, दिशा और दशा दे सके, अच्छी दिशा और दशा दे सके यहाँ पे। तो मैं आज यहाँ पे आया, मैडम के अपना इन्होंने रिक्वेस्ट किया, और वो भी मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला। मेरे किसी दोस्त ने बताया मुझे कि आपका देखो कोई वो मैडम पातल कन्या जी ने आपके लिए इतना कुछ लिखा। तो मेरा फर्ज बनता है, मैं हमेशा रिस्पेक्ट देना जानता हूँ, मैं कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। तो मैं रिस्पेक्ट के नाते, और ये हमारी बड़ी बहन है, इनसे मैंने इनके बारे में पढ़ा और देखा मैंने 2014 से, उससे भी पहले से ये क्रांतिकारी हैं, ये आप लोगों के लिए, इंडिजियस लोगों के लिए लड़ रही हैं। तो हम सभी लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए, इनको बढ़ाना चाहिए, इनको आगे लेके। और रही बात TRPCL की, तो मैं अभी मैनेजर साहब से बात कर रहा था TRPCL का कि हमारा कितना रेवेन्यू है और प्रॉफिट कितना है। तो रेवेन्यू की बात छोड़, रेवेन्यू तो बहुत कोई लोग कमा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट की बात होती है तो प्रॉफिट नहीं है हमारा TRPCL में। जबकि जो TRPCL एक अहम डिपार्टमेंट है, जैसे मैडम ने बताया कि जहां पे जो डिपार्टमेंट, जो संस्था आपका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बात करे और लोगों को सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द लास्ट क्यू, तो वो डिपार्टमेंट बहुत अहम होता है, बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है। इसी टाइप से जो TRPCL है, मैंने पूरा TRPCL के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि जो चीजें हम ADC में करते हैं, सेम चीजें हम TRPCL के माध्यम से कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे रिहेबिलिटेशन भी है और यहाँ पे आपका प्लांटेशन भी है। और हमारा जो त्रिपुरासा कम्युनिटी है और हमारा जो त्रिपुरा स्टेट है, बीइंग एग्रीरियन काइंड ऑफ इकोनॉमी, जो कि पूरी मूलभूत जो आपकी कृषि के ऊपर निर्भर होती है, जहाँ पे चाहे आप रबर प्लांटेशन, अगर वुड या कोई भी चीज लगा लीजिए, तो वहाँ पे डेवलपमेंट का बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे, किस वे में अटैच हो पाऊंगा TRPCL के साथ, लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये मैडम को बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने सुविचार के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ, मैं मैडम के अच्छे विचारों के साथ और TRPCL के साथ खड़ा हूं।
जो भी इनके मन में आएगा, जोन सी ये मुझे जिम्मेवारी देना चाहेंगी, मैं वो जिम्मेदारी लूंगा और भली भांति निभाऊंगा। और जो चीज़ मैं टीटीए-डीसी में नहीं कर पाया वो चीज़ मैं टीआरपीसीएल के माध्यम से करूंगा। और ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, आज मीडिया है सामने यहाँ पे, कि आज हमारे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है टीआरपीसीएल में, अगले 4 से 5 साल में टीआरपीसीएल सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला पीएसयू बनेगा हमारा। दिस इज माई कमिटमेंट, दिस आर माई वर्ड्स, यू कैन नोट इट डाउन टुडे एंड यू कैन आस्क मी आफ्टर 4 years कि कैप्टन साहब आपने 4 साल पहले ये चीज बोली थी, आज 4 साल हो गए हैं, आज हमारा टीआरपीसीएल कहां खड़ा है। तो हमें इसको टीआरपीसीएल को, इस डिपार्टमेंट को विश्व पटल के ऊपर लेके जाना है। सिर्फ हम यही नहीं है कि हम सिर्फ बात यहां की करें। आपका वो मोदी जी को मैंने एक बार सुना था कि अपना थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। जब तक आपका विजन जो है वो एक बड़ा विजन नहीं होगा तो आप यहाँ पे जो हमारा जो है, जो तिपरासा भाई बहन के डेवलपमेंट का बात नहीं कर सकते, आप किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। लोग कहते हैं, बहुत लोगों ने कहा, मीडिया में आता है, मैं भी पहले सोचता था कि जो हमारी सरकार है, जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है या भारत सरकार, बड़ी निर्दयी किस्म की सरकार है। मैंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया मोदी जी को और बड़े बड़े नेताओं को, बहुत मैंने क्रिटिसाइज़ किया उस चीज़ में। लेकिन जब मैं दिल्ली में गया, जब मैं मिनिस्ट्रीज़ में मिला और जो खासतौर पे नीति आयोग में और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स के साथ मेरा मुलाकात हुआ, सेक्रेटरीज के साथ में, जब मैंने देखा कि स्कीम्स इतनी है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर वो स्कीम अगर सही ढंग से लागू हो जाएं तो आदमी जो है, जो आम जन है, वो खुद सामाजिक और आर्थिक सशक्त हो जाएगा वो। लेकिन हमारा क्या है, उस चीज़ को पॉलिटिकली लेके चल पड़ते हैं। वो कैप्टन के थ्रू आया, क्यों आया? कैप्टन सीके जमातिया से बात करता है, क्यों सीके जमातिया से बात करता है? सीके जमातिया तो बागमा से चुनाव लड़ने वाला था, पॉलिटिकल रंग दे दिया। अरे सीके जमातिया जैसा अफसर त्रिपुरा में मिलना ना के बराबर है। ही इज एन एसेट फॉर त्रिपुरा, ही इज एन एसेट फॉर द टीटीए-डीसी। रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्ट हिज नॉलेज, रिस्पेक्ट हिज विजन। You should respect that kind of officers, those who are coming over here and giving the dedication and each and everything. मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज और ये अगर मैंने बोल दिया ज़्यादा कुछ तो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा एडीसी का। आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट काइंड ऑफ लेवल। मैं आज भी जितना जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बस मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है उस वोट का रिस्पेक्ट कीजिए, उनका जो सपना है उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उनका, लोगों का, आम आदमी का जो एस्पिरेशन है उसका रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपको जो भी पैसा जो मिल रहा है वहां से 30,000, 32,000, 50,000, 1 लाख रुपया, वो उस आम आदमी की वोट की वजह से आपको मिल रहा है। अदरवाइज यू आर नॉट कैपेबल टू अर्न एनीथिंग। लेट मी टेल, दे आर नॉट कैपेबल टू अर्न नॉट इवन अ सिंगल पेनी। दैट इज जस्ट बिकॉज द पीपल दे हैव voted for them, they had made them successful to win, and that's the reason they're sitting on that chair. So they should respect the chair, they should respect the sentiment of the public, and they should work for the public with whole heart and with whole commitment. That's the reason. And we want to see our Tripura on apex of the world map. We want to see our Tripura growing. That's the most important thing. Several allegations has arisen in the name of few ADC officials from the mouth of former TTA-ADC advisor Captain G.S. Rathei. However, when will the ADC government will speak in response to the allegation made by the Captain G.S. Rathei? We'll get to know in times. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.